Assalamualaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of Punjab, Lahore, and I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children. This course belongs to MA Special Education with an area of specialization hearing impairment. The course code is SPED 4133 and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Games Based Learning. This lecture is a continuation of previous lecture. In our previous lecture we have discussed description of games based learning and how games based learning is used as a teaching method in the classroom, and then we have discussed its benefits and few limitations in the classroom. We were talking about that how games based learning caters individual needs in the classroom, and Gardner's theory of multiple intelligence plays a very important role when we are applying games. In today's lecture, we will discuss in detail that how Gardner's theory affects games-based learning and how it is useful when we are using games-based learning. And then we will discuss specifically that how games can be used in the mathematics classroom and how they work and how they are useful in the maths classroom. So we were talking about that Gardner's multiple intelligence theory helps to cater individual needs in the maths classroom, because Gardner's theory is based on multiple intelligences and it involves many abilities of the students. Here you can see in the circle that all 8 multiple intelligences are enlisted. If we start from the linguistic, next is logico-mathematical, naturalist, spatial, bodily kinesthetic, musical, interpersonal and intrapersonal. In this circle there is identified a single word for each multiple intelligence, which will show you a summarized look of multiple intelligences. First one, linguistic, and the word chosen for it is word smart, because the students who are using their linguistic skills, they are very word smart. Logic smart is used for logico-mathematical. Those students who are using their logico-mathematical skill in the classroom, they are logic smart. Next one is naturalist. They are nature smart. Next is spatial, and those students with spatial skills and they have dominant spatial skills, they are picture smart. Bodily kinesthetic, the word identified for this is body smart. Musical, these students are music smart. Interpersonal students are people smart, because they have good interpersonal relationships with others. Next is intrapersonal, and these students are self-smart because they focus on their selves. Now we will discuss briefly one by one all these multiple intelligences of Gardner's. First one is linguistic. Those students who use linguistic intelligence, they excel in words, languages, poetry, poets, writers. In short, जो बच्चे linguistic intelligence में बहुत ज़्यादा
एक्सेल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली दे आर वेरी गुड विद द वर्ड्स। राइटिंग्स के साथ वो बहुत अच्छे होते हैं, लिखना पढ़ना वो उनके बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ बॉडीली किनेस्थेटिक्स। Those students who are using their bodily kinesthetic intelligence, they excel in performing sports, physical activities and body movements, sports, athletes, etc. So physical activities के साथ ये बच्चे बहुत ज़्यादा involve होते हैं, जो कि bodily kinesthetics होते हैं, and they know very well the use of their body, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और effectively, efficiently यूज़ करते हैं। So they are very good in performing arts and performing sports and all those activities which involve physical activities. Next is naturalistic intelligence, and those students who are using their intelligence of naturalistic, they love plants, animals and nature, understands natural world, ecologists, conversationalist. So नेचर से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उसमें ये बच्चे बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं उन स्किल्स में। सो दे आर नेचुरलिस्टिक इन देयर नेचर। नेक्स्ट वन इज़ लॉजिको मैथमेटिकल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल मैथमेटिकल। These students excel in maths, logical thinking, like bankers, accountants। तो ये बच्चे जो है वो excel करते हैं मैथ्स में। They are very sharp in doing mathematical problems। और बेसिकली जिस स्किल में ये बहुत अच्छे होते हैं दैट इज़ लॉजिकल थिंकिंग। तो ऐसे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो बेसिकली जो स्किल वो डेवलप कर रहे होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग की स्किल होती है। और प्रोफेशन जिसको वो चूज़ करते हैं ज़्यादातर बैंकर्स, अकाउंटेंट्स और एंड ऑल अदर फील्ड्स विच इन्वॉल्व मैथमेटिशियंस, गुड मैथमेटिशियंस। तो जो बच्चे अच्छे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली अपना एरिया चूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ म्यूज़िकल। दीज स्टूडेंट्स एक्सेल इन परफॉर्मिंग एंड कंपोजिंग म्यूज़िकल पीसेस। तो म्यूज़िक के अंदर इनका बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ऐसे बच्चों का जो म्यूज़िकली इंटेलिजेंट होते हैं, और दे चूज़ सिंगिंग और म्यूज़िकल कंपोजिंग एज देयर प्रोफेशन मोस्टली। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रापर्सनल। दो स्टूडेंट्स who are very efficient in the interpersonal intelligence, they have the ability to understand one's inner feelings, self-realization and to know about own skill philosopher। So अपनी, जिसे हम कहते हैं कि अपनी ज़ात का बहुत अच्छा इल्म उनको होता है कि वो कहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, किस चीज़ के अंदर वो बुरा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या उनकी लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, कितना वो काम कर सकते हैं, उनकी इनर एबिलिटीज़ क्या हैं। सो दे आर वेरी गुड एट देयर सेल्फ रियलाइजेशन, और अपने बारे में उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ विजुअल स्पेशियल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओनली स्पेशियल। These students are very sharp in shapes, designs, graphics and visualizations। तो ये बच्चे जो हैं ये प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें काम करने में बहुत अच्छे होते हैं जिनमें आर्ट वर्क इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट शेप्स को बनाना, डिफरेंट डिज़ाइन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ग्राफिक्स को डेवलप करना और विजुअलाइजेशन के थ्रू काम करते हैं। तो विजुअल स्पेशियल होते हैं ये स्टूडेंट्स, एंड दे बिकम मोस्टली डिज़ाइनर एंड इंजीनियर्स। लाइक इंजीनियर्स जो हैं वो टोटली आर्ट से डिफरेंट है, तो आप इसको ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि विजुअल स्पेशियल में सिर्फ वो शेप्स होती हैं जो कि आर्ट में जिनका काम होता है, बल्कि ये कोई भी जो मैथमेटिकल फील्ड है या इससे अलावा भी कोई और फील्ड जिसके अंदर शेप्स, डिज़ाइंस और ग्राफिक्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो विजुअल स्पेशियल स्किल्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटरपर्सनल। These students have ability to organize people,
good activities, group activities and social relationships. So these students are very good while they are working in different groups. क्लासरूम के अंदर हों या बाहर हों, सोसाइटी में उनका जो रोल होता है, दे आर वेरी गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स, रिलेशनशिप्स. और इस तरह के जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को बेस बनाते हैं और दे आर वेरी गुड एट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, दे विल बिकम लीडर्स इन द फ्यूचर एंड ऑल्सो सोशल वर्कर्स. तो इस तरह की चीज़ें वो चूज़ कर सकते हैं. सो दीज वर द 8 इंटेलिजेंसेस प्रेजेंटेड बाय गार्डनर्स. एंड इंडिविजुअल नीड्स की जब हम बात करते हैं तो हर एक बच्चे में इस डिफरेंट इंटेलिजेंस का लेवल होता है. हर एक बच्चा वो एक ही तरह से इंटेलिजेंट नहीं होता. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी एक स्किल में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो किसी और स्किल में ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है. तो इंडिविजुअल नीड्स के साथ, क्योंकि गेम्स जो हैं वो हर एक तरह की इंडिविजुअल नीड उसमें किसी भी इंटरेस्ट के साथ बच्चा हो, किसी भी प्रोमिनेंट इंटेलिजेंस के साथ जो स्टूडेंट है वो गेम्स में इक्वली परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे वो विजुअल स्पेशियल हो, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल स्किल्स, म्यूज़िकल, हर तरह की स्किल जो है वो गेम्स में यूज़ हो रही होती है. सो गेम्स में इतनी डाइवर्सिटी होती है कि वो एक ब्रॉडर लेवल पर इंडिविजुअल नीड्स को डील कर सकती हैं. नाउ वी विल डिस्कस यूज़ ऑफ गेम्स इन मैथमेटिक्स. One way to increase visual learning is by leveraging purposeful gameplay to engage students and build their understanding of critical math skills. So technically teachers should be sharp enough in planning कि वो इस तरह से गेम्स को प्लान करें जिसमें एक लेवरेज हो रहा हो, प्रॉपर एक बैलेंस हो रहा हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गेम प्ले में इंगेज भी हों, उसको एंजॉय भी करें और उनकी जो क्रिटिकल मैथ स्किल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उनमें डेवलप हो. सो जस्ट फन नहीं होना चाहिए गेम्स में, बल्कि जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हमें इंक्लूड करनी है इस तरह की गेम्स. For learners who approach math with difficulty or discomfort, math games provide a more engaging context for introducing and practicing new skills. The impact on motivation and engagement alone can explain much of the positive impact for games. So those students who are with particular problems of maths, तो उनके लिए ये गेम्स जो हैं वो उनके लिए बड़ा इंगेजिंग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू आप न्यू स्किल्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. तो जैसे हम कहते हैं कि खेल ही खेल में बच्चे लर्न कर रहे होते हैं मैथ्स, और उनका क्योंकि जो गेम्स हैं उसमें बच्चों की मोटिवेशन और इंगेजमेंट लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है और उसकी वजह से जो है वो गेम्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चे की लर्निंग पर, और उस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं उनको प्रैक्टिस करता है थ्रू गेम्स. सो गेम्स को यूज़ करना ऐसी क्लास में जहाँ पर आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हों जिनके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मैथमेटिकल लर्निंग में वो बहुत पुअर हैं. अगर आप किसी भी और टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हो तो ऐसी क्लास के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए गेम्स जो हैं वो मैजिकल इम्पैक्ट दे सकती हैं. क्योंकि और उसकी रीज़न यही है कि मैथ्स में जो एक कुछ स्टूडेंट्स को बहुत एक बोरियत लग रही होती है, बोरियत का एलिमेंट होता है, तो गेम्स के थ्रू आप उनकी मोटिवेशन और एंगेजमेंट लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से साइमल्टेनियसली उनकी लर्निंग भी हो रही होती है मैथमेटिकल स्किल्स की. Games provide students with opportunities to drive their own learning, develop problem-solving skills, and receive immediate feedback, encouraging productive struggle and persistence in the face of temporary setbacks. So, मैथ गेम्स जो हैं उनमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद होती हैं
जिसके थ्रू बच्चा अपनी लर्निंग को खुद से ड्राइव करना सीखता है। दैट मीन्स कि वो अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर कर रहा होता है कि मुझे कितना मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ किसी एक गेम को प्ले करने में। क्योंकि जब आप गेम्स के थ्रू लर्निंग करवा रहे होते हैं तो उसमें टीचर फीडबैक से पहले एक इंटरनल फीडबैक बच्चे की तरफ से भी उसकी अपनी लर्निंग के टुवर्ड्स आता है और उसकी वजह से वो सेल्फ अवेयर भी होता है। इसके अलावा गेम्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी इस किस्म की प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए वो गेम्स में ज़्यादा शार्पली काम कर रहे होते हैं। एंड रिसीव इमीडिएट फीडबैक, अपनी तरफ से भी उनको फीडबैक इमीडिएटली मिल रहा होता है और टीचर की तरफ से भी एट द एंड ऑफ द गेम उनको फ़ौरन से फीडबैक मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे के लिए जो गेम्स हैं वो बड़ी प्रोडक्टिव स्ट्रगल के तौर पर काम कर रही होती हैं, क्योंकि एक गेम खेलने के बाद वो नेक्स्ट गेम के लिए ज़्यादा अच्छे से ट्राई कर रहा होता है। तो इस वजह से उसकी जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है किसी भी और टीचिंग मेथड की निस्बत। एंड परसिस्टेंस इन द फेस ऑफ टेम्प्रेरी सेटबैक्स, तो जो अगर कहीं पर वो टेम्प्रेरी फेल हो रहा है किसी एक अटैम्प्ट के अंदर, तो उसको फेस करने के लिए उसको ज़्यादा अच्छे से वो फेस कर सकता है, क्योंकि गेम्स में बच्चे जो हैं उन चीज़ों को कम फील करते हैं। It is also important for students to have opportunities for hands-on tactile learning in math classroom, and educators can use manipulatives and concrete examples to develop each learner's understanding across a continuum of concrete, representational and abstract reasoning skills. Manipulatives can be used both in physical form and through digital applications. So here we are talking about the use of manipulatives in the classroom where mathematics is being taught. तो जनरली ये होता है कि मैथ्स की क्लास में कोई भी एविएड्स वगैरह ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ नहीं कर रहे होते टीचर्स, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेली लिविंग स्किल्स के साथ रिलेट करता है, डेली लिविंग्स के साथ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेटिव्स यूज़ करने चाहिए, जो कंक्रीट मैनिपुलेटिव्स हों, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हों, ताकि उनकी जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो ज़्यादा शार्प हों और उनकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छी हों। तो इस तरह से जो यूज़ ऑफ मैनिपुलेटिव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स की क्लास में, क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होता है, उसके अलावा वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं। तो मैनिपुलेटिव्स फ़िज़िकल फॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं और इसकी डिजिटल एप्लीकेशंस भी यूज़ की जा सकती हैं, क्योंकि प्राइमरी मैथ में तो आपको ऐसे मैनिपुलेटिव्स बहुत मिल जाएंगे जिसमें आप फ़िज़िकल एरिएट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस के साथ जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन जो हायर मैथ्स है उसमें ज़्यादातर जो आप मैनिपुलेटिव्स यूज़ करेंगे वो डिजिटल होंगे, डिजिटल एप्लीकेशंस के साथ होंगे। तो जितना ज़्यादा आईटी बेस्ड क्लास होगी हायर ग्रेड्स में, उतनी अच्छी जो है वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होगी मैथ्स में। तो बजाय इसके कि सिर्फ सिंपली जो है उनको मैथ्स पढ़ा दिया जाए और बोर्ड के ऊपर उनको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएँ, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फ़ोकस हमें ये करना चाहिए कि मैथ्स की क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट एविएट्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। When students are provided these learning opportunities involving manipulatives combined with games-based learning experiences, they often report higher levels of interest in math. So जो combination है manipulatives का with games जो इन दोनों का combination है, यानी manipulatives का use और games के साथ, तो इससे बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ये रिसर्च रिपोर्ट करती है। बिकॉज़ जब आप डिफरेंट एविएट्स भी यूज़ कर रहे हैं क्लास में, चाहे वो फ़िज़िकल हों, और उसके साथ फ़िज़िकल मैनिपुलेटिव्स को यूज़ करते हुए अगर आपने कोई गेम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसमें सिर्फ जस्ट प्ले नहीं है बच्चों का, बल्कि आप वो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके फ़िज़िकली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ वो जो है वो लर्न कर रहे हैं, तो गेम्स प्लस मैनिपुलेटिव्स जब मिलते हैं, और इसी तरह से जो हायर ग्रेड्स के लिए अगर आप डिजिटल गेम्स की एग्जांपल्स लेते हैं, तो डिजिटल गेम्स को खेलते हुए बच्चे जो हैं उनके साथ जब मैथ्स की वो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो इससे उनका मैथ में इंटरेस्ट बहुत इंक्रीज़ होता है। गेम्स वर्क कैसे करती हैं, हाउ गेम्स वर्क फॉर द इंडिविजुअल्स इन द क्लासरूम।
गेम्स मेक्स ब्रेन्स ग्रो, क्योंकि एक बहुत जो बेनिफिट है गेम्स का वो जनरल यही होता है कि वो ब्रेन्स को ग्रो करती हैं। इसी वजह से जब आप चाइल्डहुड में देखें कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो अ स्टडी यूजिंग fMRI टेक्नोलॉजी शोड दैट 3 एरियाज ऑफ ब्रेन ग्रोथ आफ्टर 2 months ऑफ प्लेइंग डिजिटल गेम्स। तो डिजिटल गेम्स के साथ भी ब्रेन ग्रो करता है और फिज़िकल गेम्स के साथ भी ब्रेन ग्रो करता है। तो ये जिस हम रिसर्च की बात करें उसमें डिजिटल गेम्स को उनके यूज़ पर रिसर्च की गई थी और उसने ये बताया कि रिसर्च ने ये शो किया कि ब्रेन के 3 डिफरेंट एरियाज हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं व्हेन द स्टूडेंट्स आर यूजिंग डिजिटल गेम्स। द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एनालाइजिंग, मेकिंग चॉइसेस एंड मेकिंग प्रिडिक्शंस। सो जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये ग्रो करेगा बच्चे का तो डेफिनेटली उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और एनालाइजिंग की जो कैपेसिटी है और बाकी सारी जो इस कॉर्टेक्स के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब में बच्चा शार्प हो रहा होता है। द हिप्पोकैम्पस ये सेकंड एरिया है ब्रेन का जो कि गेम्स की वजह से ग्रो करता है एंड दिस एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, स्पेशियल नेविगेशन एंड लर्निंग। तो मेमोरी और स्पेशियल नेविगेशन वगैरह जो है ये मैथमेटिकल क्लासरूम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये एरिया जब ग्रो करेगा तो बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स भी इम्प्रूव करेंगी। थर्ड एरिया ब्रेन का जो ग्रो करता है एज अ रिजल्ट ऑफ गेम्स दैट इज़ सेरिबेलम एंड सेरिबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मूवमेंट्स। तो इस तरह से ओवरऑल जो है वो गेम्स बहुत प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स देती हैं आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स जिनको आप गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके ब्रेन्स पर। तो जैसे जैसे ब्रेन उनका ग्रो करेगा, डिफरेंट एरियाज उसके ग्रो करेंगे तो उस तरह से उनकी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। सेकेंड जो है हाउ गेम्स वर्क में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ गेम्स टीच प्रोडक्टिव स्ट्रगल। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि गेम्स जो हैं वो बच्चों में प्रोडक्टिव स्ट्रगल डेवलप करती हैं। जनरली ये होता है कि बच्चे किसी भी अगर टास्क में वो फेलियर को फेस कर रहे हों तो उसकी वजह से वो डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इफ़ यू थिंक अबाउट इट मोस्ट ऑफ द गेम प्लेइंग इज़ फेलिंग, सो वाई डोंट प्लेयर्स गिव अप। यानी बार बार बच्चे उसमें फेल, जब भी आप एक गेम करते हैं तो उसमें एक टीम जो है वो विन कर रही होती है और दूसरी टीम लूज़ कर रही होती है, बट स्टिल दे स्टैंड अप फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। तो ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट टू फेल एज पार्ट ऑफ मास्टरिंग अ गेम। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये पता होता है कि हम बार बार इस गेम को ट्राई करेंगे तो हमारी मास्टरी जो है वो इंक्रीज़ होगी उसमें और हम फेलियर्स का रिस्क जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो गेम को लूज़ नहीं करना चाहते होते बच्चे उसमें, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है। तो उस गेम्स को लूज़ ना करने की वजह से वो कॉन्टीन्यूसली एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं टू विन। It does not make them feel bad. They know that struggle and failure are just part of the process towards success. तो गेम्स ये चीज़ इंसान को बहुत अच्छा सिखा रही होती हैं कि जो फेलियर है दैट इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। सो बच्चे उसको बार बार ट्राई कर रहे होते हैं और अगली गेम में वो दूसरी टीम से विन करने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपने पार्टनर से विन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो गेम्स हैं वो प्रोडक्टिव स्ट्रगल बच्चों को सिखाती हैं, जो कि एक प्रोडक्टिव वे में बच्चे उस स्ट्रगल को यूज़ कर रहे होते हैं। Now we will talk about appropriateness of games for math. Nearly 3/4 of teachers using digital games report that games have been effective in improving students' mathematics learning. However, most teachers want help finding curriculum-aligned games that lend themselves to deep exploration एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर हम बात करें डिजिटल गेम्स की जो कि हायर मैथ्स में यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर टीचर्स को जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो एप्रोप्रिएटनेस है, करिकुलम अलाइंड गेम्स को ढूंढना। तो यानी ऐसी गेम्स हों जिसमें मैथ्स भी करवाया जा रहा हो, डिजिटल गेम्स, लेकिन उसमें हिडनली जो है वो आपका करिकुलम भी हिट हो रहा हो। तो ऐसी गेम्स जिसमें करिकुलम बेस्ड जो हों
उनको प्रेफर करना होता है और टीचर्स के लिए उन गेम्स को फाइंड आउट करना ऑनलाइन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन इसके अल्टरनेट में अगर आप देखें तो जो दूसरी फिज़िकल गेम्स क्लासरूम में बच्चे टीचर्स खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें चूँकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता और टीचर्स जो हैं वो खुद से डेवलप कर रहे होते हैं गेम्स। उसमें बहुत सी चीज़ें टीचर अपनी मर्ज़ी से या स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज भी कर लेता है। न्यू गेम्स के अंदर न्यू रूल्स जो हैं वो समटाइम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। लेकिन जो आईटी बेस्ड गेम्स होती हैं, डिजिटल गेम्स हैं, उसमें भी इफ़ द टीचर इज़ एफिशिएंट इनफ और उसकी अच्छी हैं स्किल्स अगर आईटी की, तो वो उसमें भी एडिड और न्यू गेम्स भी इवन उसके अंदर डेवलप की जा सकती हैं। Look for games that create a compelling world of problem solving, allow self-directed exploration, deliver scaffold mastery based learning, and provide data for players to monitor their own progress and offer real time feedback to help players adjust their solution. तो डिजिटल गेम्स हों या फिज़िकल गेम्स हों, वो इस तरह की चूज़ करनी चाहिए टीचर्स को कि वो एक कंपेलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हों जिसमें जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी हर बच्चा जो है वो उसमें एक कंपेल्ड फील करे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको हमने इम्प्रूव करना है और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। और फिर ये है कि सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन भी होनी चाहिए गेम्स के अंदर। बच्चों को अपनी स्किल्स के बारे में पता चलता है कि मैं किस तरह से खेलूँ तो मैं जीत सकता हूँ। इसी तरह से जो है वो मास्टरी बेस्ड लर्निंग होती है, क्योंकि उसमें गेम्स में बच्चे बार बार उसको ट्राई कर रहे होते हैं और उसके थ्रू वो मास्टरी गेन करते हैं। और इस तरह से इसमें ऐसी गेम्स में बच्चे जो हैं वो अपनी मॉनिटर अपनी प्रोग्रेस को खुद से करते हैं, क्योंकि उनको रियल टाइम फीडबैक मिल रहा होता है और वो अपने डिफरेंट सॉल्यूशंस को एडजस्ट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। Here are few tips for the teachers that how they can choose games. A game must be more than just fun. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ फन के लिए गेम नहीं ढूंढी जा रही। अ गेम शुड इन्वॉल्व फ्रेंडली कंपटीशन। कंपटीशन होना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिविजुअल बच्चों को ऐसी गेम दे रहे हैं जिसको जस्ट उसने प्ले करना है और उसका जो रिज़ल्ट है उससे उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी गेम्स शायद इतना ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगी मैथ में। तो मैथ के लिए आप ऐसी गेम्स को चूज़ करें, चाहे वो सेल्फ कंपटीशन उसमें इन्वॉल्व हो, लाइक ऐसी गेम्स जिसमें बच्चे जो हैं वो अगर सपोज़ कुछ पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट करने हैं, तो लास्ट टाइम जो उन्होंने अटैम्प्ट किया है उसमें जितने उन्होंने पॉइंट्स को कलेक्ट किया है, नेक्स्ट अटैम्प्ट में उनके लिए टारगेट होता है कि उससे ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने अचीव करने हैं। तो एक फ्रेंडली टाइप ऑफ कंपटीशन मस्ट होना चाहिए गेम्स में। It should keep all of the students involved and interested. So games should have the capacity to involve majority of the students in the classroom and keep them interested throughout the game. ये नहीं हो सकता कि आपने गेम स्टार्ट की, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त उसमें इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे गेम आगे जा रही है दे आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट, सो इट मीन्स दैट गेम इज़ नॉट मच वर्किंग फॉर दोज स्टूडेंट्स and you should plan a new game for that curriculum content. It should encourage students to focus on the use of language rather than on the language itself. So इसमें आप ऐसी गेम्स करवाएं, आप नए सिरे से बच्चों को लैंग्वेज सिखा ना रहे हों। जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज है, मैथमेटिकल जो वोकेबलरी यूज़ होती है उसको आप सिर्फ टीच ना कर रहे हों, बल्कि आप ऑलरेडी अगर क्लास में टीच कर रहे हैं तो उनका यूज़ बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं व्हेन दे आर प्लेइंग। प्लान टू यूज़ अ गेम दैट विल अलाउ योर स्टूडेंट्स टू मीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेटली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते जब आप प्लान कर रहे होते हैं गेम्स को। इसी तरह से अ गेम शुड गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू लर्न, प्रैक्टिस एंड रिव्यू स्पेसिफिक लैंग्वेज मटेरियल्स। सो लैंग्वेज के लिए चूँकि मैथ्स के जो गेम्स आप करवा रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के से रिलेटेड अगर आप गेम्स करवा रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो वोकेबलरी है और जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लैंग्वेज है वो इन्हेंस हो रही होती है उन गेम्स के थ्रू। तो इस तरह ये चांसेस बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लैंग्वेज जो है उसको लर्न कर रहे हों, प्रैक्टिस कर रहे हों और रिव्यू कर रहे हों।
तो जैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वोकेबलरी आती है जो कि बच्चों के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होती है उसको सम टाइम प्रोनाउंस करना और उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन जब गेम्स में वो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं तो बच्चे उसको कंपेयर टू जल्दी सीख लेते हैं. Here are few examples. These examples are from the language classroom. और जस्ट इनको मैंने यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया कि आपको गेम्स का आइडिया हो जाए कि किस तरह की गेम्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर यूज़ की जा सकती हैं, और इन गेम्स को फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं या इनको मोल्ड किया जा सकता है एक मैथमेटिक्स की क्लासरूम के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने मैथ्स का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को डिलीवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है गेम्स आप चूज़ कर सकते हैं. लाइक पज़ल्स हैं तो क्रॉसवर्ड्स, लॉजिक और जिग्सा वगैरह जो है ये पज़ल्स डिफरेंट आप डिज़ाइन कर सकते हैं बच्चों के लिए. बोर्ड गेम्स हैं जिसमें किसी भी स्किल को यूज़ करते हुए बोर्ड के ऊपर गेम्स करवाई जा सकती हैं. मेमोरी कार्ड गेम, लाइक छोटी सी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम मेमोरी कार्ड बच्चे पास ऑन कर रहे होते हैं कि और वो कार्ड के ऊपर जो लिखा होता है उसको मेमोराइज़ करते हैं कि वो कितनी देर तक उसको कीप ऑन कर सकते हैं. विस्पर गेम्स भी यूज़ की जा सकती हैं. ये स्पेलिंग्स और विस्पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी वगैरह के लिए यूज़ की जा सकती हैं. चेन स्पेलिंग है, चेन स्पेलिंग भी वोकेबलरी के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. डिस्क्राइब इमेजेस, डाइस गेम्स वगैरह, ये स्पीकिंग, इसके में बच्चों की स्पीकिंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं. व्हाट इफ़, लाइक अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ बच्चों को कराते हैं क्लास में कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसमें बच्चों को स्पीकिंग का मौका मिलता है. इसी तरह से मिमी है या रोल प्ले है, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही होती हैं. सो ये लैंग्वेज के लिए गेम्स हैं. इस तरह की और बहुत सी गेम्स आप मैथ्स के लिए डेवलप कर सकते हैं या इसमें से चूज़ की जा सकती हैं. ये इस तरह से कुछ ऐसी मैथ्स की एग्जांपल्स हैं जो कि अगर आप मैथ गेम्स लिख के अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी गेम्स मिल जाएंगी. जैसे एडिशन ऑफ नंबर गेम है, एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स गेम है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग गेम, इवन एंड ऑड नंबर्स गेम, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स गेम, skip counting to 5s 10s games, multiplication with multiples of 10 game, multiplication games and so on. मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपसे शेयर किया है जस्ट टू शो यू कि किस तरह से आप ऑनलाइन जो गेम्स होती हैं उनको क्लासरूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं. लेकिन इसमें से बहुत सी गेम्स जो हैं वो पेड गेम्स होती हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि वो मैथ्स की टीचर के लिए किस तरह की और कितनी गेम्स जो है उनको अरेंज कर सकते हैं. बट यू शुड नो कि इस तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं ऑनलाइन जिनको मैथ्स की क्लास में यूज़ किया जा सकता है. फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं बट डेफिनेटली दोज आर वेरी लिमिटेड. तो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल सेक्टर या कहीं पर भी जहाँ आपको लगता है कि आप ऐसे रिसोर्सेज को अरेंज कर सकते हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कह के उनकी कुछ पेमेंट्स वगैरह या उनको परचेज़ किया जा सकता है थ्रू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो आप कर सकते हैं. इसके अलावा लिंकेजेस जो हैं वो भी ऑनलाइन गेम्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. यानी जैसे अगर एक टीचर के पास मौजूद है कुछ गेम्स तो उससे दूसरा मैथ्स का जो टीचर है वो बेनिफिट ले सकता है. तो शेयरिंग के थ्रू भी इसको किया जा सकता है. लाइब्रेरीज़ जो हैं वो बड़ी इक्विप्ड होनी चाहिए ऑनलाइन जो गेम्स हैं उसमें, और समटाइम्स जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने अरेंज भी की हुई होती हैं गेम्स, तो उसमें से टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस तरह से उस किसी भी गेम को यूज़ कर सकता है while they are teaching mathematics in the classroom. So now we have finished our games based learning lecture in 2 series, and if you have any question you can ask me in the Google Classroom. Thank you very much.